Dear students, again we are in the second lesson, physical features of India, and today's topic is the Indian desert. You have studied this before also, and this is your revision class. But pay attention so that you can learn everything in this class. Firstly, what is the location of Indian desert? Indian desert lies on the western side of the Aravalli mountains, Aravalli hills, right? Where is the location of desert? On the western side of India, and that is exactly on the west of Aravalli Hills. It is undulating. Undulating means uneven, sandy plain covered with sand dunes. Sand dunes means accumulation of sand in the form of small hills. So small hills of sand is known as sand dunes. So you are studying it in very brief manner, that what type of landform is there, what is the climatic condition, what type of vegetation is there, and what type of drainage system is there. So about the landforms, you can say that it is a sandy plain with lot of sand dunes, and it is very undulating also. Undulating means uneven also. What about the climatic condition? This region receives very low rainfall, below 150 millimeter per year. So this is very low quantity of rainfall. Why rainfall is low? Because this is the end point. This region is the end point of the monsoon wind, which has very less capacity of bringing rainfall, because this is the farthest place in the direction of the monsoon wind, which is coming from the Arabian Sea. It has arid climate. Arid means dry climate. Are you listening? Yes, ma'am. Huh. It has arid climate with low vegetation cover. When the climate is arid, arid means dry with very low rainfall. So when the climate is dry, there is very low vegetation cover. And streams appear. Streams means small rivers. Streams appear during the rainy season. There are no big rivers in this region. Only small rivers are there in the form of streams, and they also appear during only the rainy season. Soon after, they disappear into the sand. Soon after, they disappear into the sand, means the rivers are the example of inland drainage system in the Thar Desert. The western part of India, which is desert, is also known as Thar Desert. So the rivers disappear. That means to say that they are not able to reach the sea. They are not able to reach the Arabian Sea disappeared in the land. because of the low volume of water in them. So this type of river is known as inland drainage system of river. And Luni is the only large river in this region. Luni is the only large river in this region, but this river also is not able to reach the Arabian Sea. Sometimes flood also occur. In 1979, Luni was over flooded also, but generally the volume of water is low. So see here, this is a picture of desert region, which shows that how people are putting lot of effort to bring water from far-flung areas, because there is scarcity of water. So Thar Desert, or the Great Indian Desert, lies in India, or it's, you can say that it's 85% part lies in India and 15% part also lies in Pakistan. 15% only. And in Pakistan, there are two provinces, Sindh and Punjab. Punjab province is also in Pakistan. So Sindh and Punjab has 15% of the desert area, and 85% of the desert area lies in India. Barkhans, crescent shaped dunes
cover larger areas, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, Jaisalmer is the westernmost district of Rajasthan. If you visit Jaisalmer, that means it is very close to Pakistan. You may also go to see a group of barkhans. Sand dunes, when become a crescent shaped, they are known as barkhans, right? Previously, I have shown you the picture of barkhan. Again, today you can see this. Sand dunes. Now you repeat, what are sand dunes? The small hills of sand is called sand. The small hills of sand is called sand dunes. Very good. Small hills of sand The in the Indian desert desert. areas Yes, are ma'am. known as Elevated area in the Rajasthan is known as a so small Sand. hills of sand in the desert areas are known as sand dunes, right? So you can see the picture of barkhans. Are you seeing? स्क्रीन शेयर हो रहा है, देखो तो। No, ma'am. नहीं हो रहा है। अच्छा, एक मिनट। तो सैंड ड्यून्स ही जब दूसरे शेप का हो जाता है ना, थोड़ा क्रिसेंट शेप हो जाता है, तो उसे बरखंस कहते हैं। क्रिसेंट शेप क्या होता है ये देख रहे हैं, ठीक है। सैंड ड्यून तो सिंपल एक हिल हो गया, हिली टाइप ऑफ सैंड डिपोजिशन। और जब एक तरफ से मतलब एक साइड से, जैसे ये देख रहे हो ना, आर यू सीइंग दिस? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो अगर ऐसे सिंपल एक हिल रहेगा, हिल ऐसे दोनों एक तरफ से स्लोप रहेगा, दोनों साइड का स्लोप एक जैसा रहेगा, तो उसको हिल ऑफ सैंड या सैंड ड्यून्स कहते हैं। लेकिन ये दूसरा साइड देख रहे हो, ऐसे यहाँ से सैंड जो है वो स्लिप कर जाता है विंड के मूवमेंट की वजह से, विंड के डायरेक्शन की वजह से ये सैंड स्लिप करते करते ऐसा क्रिसेंट शेप बन जाता है, मतलब हाफ मून की तरह एक साइड से बन जाता है। ये देख रहे हो ना? तो इस तरह का अगर सैंड ड्यून बनता है तो ऐसे सैंड ड्यून को क्या कहते हैं? बरखंस कहते हैं। और ड्यून मूवमेंट देख रहे हो, ऐसे एरो बनाया हुआ है, मतलब इस तरह से विंड अगर फोर्स डालता है ना, तो यहाँ का सैंड ड्यून धीरे धीरे शिफ्ट होते होते इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है। तो सैंड ड्यून ना अपनी जगह पे फिक्स्ड नहीं रहते हैं, sand dunes are moving, right? In the Jaisalmer border, see this type of landform is seen. Lot of barkhans are there. Are you seeing this? Yes, ma'am. हाँ, तो बहुत सारे बरखांस रहेंगे तो ऐसा डेजर्ट ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना? तो इसी को कहते हैं बरखंस। यह है ना क्रिसेंट, मतलब ऐसे हाफ मून की तरफ गया है, हाफ दिख रहा है, और ये ऊंचा सा सैंड हिल है, और इसके बाद ये ऐसे क्रिसेंट शेप्ड हो जाता है, तो इसी को बरखांस कहते हैं। तो सीरीज ऑफ बरखांस आर सीन इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट which is towards the western border of India, right? तो ये तुम लोग दोनों देख लिए पिक्चर, पहले भी दिखाए थे ये। तो डेजर्ट के बारे में क्या क्या लिखेंगे अपने आंसर में? तुम डेजर्ट को किस तरह से डिस्क्राइब करोगे? एक क्वेश्चन नोट कर लो, अगर जो नहीं नोट किया था पहले वो अभी नोट कर लो। डिस्क्राइब द इंडियन डेजर्ट। डिस्क्राइब द इंडियन डेजर्ट। तो इसमें क्या क्या पॉइंट बनते हैं, देखो यहाँ से।
द इंडियन डेजर्ट में सबसे पहले इसका लोकेशन लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखते हैं कि इंडिया में ये किस डायरेक्शन में लोकेटेड इज वेरी लो रेनफॉल दैट इज 1 मिलीमीटर पर ईयर, तो इसको एरिड क्लाइमेट कहते हैं। तो वेजिटेशन कैसा होगा? वेरी लो वेजिटेशन कवर। तो वेजिटेशन में यहाँ तुम खुद से कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे थॉर्नी बुशेस, कैक्टस, बबूल, कीकर, ये सब नाम सुने हो ना डेजर्ट एरिया के वेजिटेशन का नाम, तो वो सब तुम यहाँ पे लिख सकते हो। फिर थोड़ा बरखांस के बारे में लिख दो, थोड़ा यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में लिख दो। ड्रेनेज मतलब जो लूनी रिवर है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स अपीयर होते हैं, उसके बारे में लिख दो। और ये सारे रिवर्स जो हैं वो सी तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, बस इतना ही शॉर्ट में लिखना है डेजर्ट के बारे में। तो तुम लोग थोड़ा सा एक ये भी देख लो, इसके मैप में जो पेज नंबर 10 में जो तुम्हारा मैप है उससे भी इसको एक बार और रिवीजन कर लो। ये देखो यहाँ दिख रहा है ना, दिस इज अरावली माउंटेन। ये एग्जाम में दिखाने के लिए आता है मैप वर्क में। तो अरावली माउंटेन के वेस्ट में क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो इसमें स्टेट्स कौन कौन से आ गए? पूरा राजस्थान का वेस्टर्न साइड आ गया, नॉट होल ऑफ राजस्थान, ओनली वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात, राइट, सम पार्ट्स ऑफ पंजाब ऑल्सो एंड हरियाणा। तो मेनली सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? राजस्थान का बड़ा हिस्सा है। उसके बाद गुजरात का कुछ पार्ट है, इधर पंजाब और हरियाणा से भी कुछ पोर्शन है। तो ये सारे डेजर्ट का एरिया होगा, ठीक है ना। और यही डेजर्ट यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान में भी, इस डेजर्ट का करीब 15% एरिया पाकिस्तान में भी है, जो सिंध और पंजाब कहलाता है। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज कोस्टल प्लेन। कल के क्लास में वेस्टर्न घाट माउंटेन और ईस्टर्न घाट माउंटेन का डिफरेंस लिखाया गया था। आज का क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। याद है ना तुम लोग को? Yes, ma'am. मान्या, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. हाँ हाँ, तो बीच बीच में रिस्पॉन्स करना तो समझ में आता है। तो तुम्हारे पास आंसर लिखा है, और जिन बच्चों के पास नहीं लिखा है वो Yes, ma'am. आज लिख लेना। ठीक है, ये देखो, दिस नैरो प्लेन इज मैम स्क्रीन नहीं आ रहा है। हाँ, क्या बोले? स्क्रीन नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको। मैम आ रहा है। आ रहा है ना? अच्छा ठीक है, थोड़ा नेट स्लो भी चल रहा है। तो ये जो नैरो लैंड है दिख रहा है ना, इसके लोकेशन में क्या लिखोगे? Yes, ma'am. कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट माउंटेन। Western Ghat Mountain. हाँ, वेस्ट में जो प्लेन लैंड है उसको कहते हैं। Ma'am, narrow land between the sea and mountain is called coastal plain. फिर से बोलो। है Western Narrow coastal land plain between are the located. mountain and the sea is called coastal land. हाँ, तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया जो वेस्टर्न घाट माउंटेन के वेस्ट में है। तो कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से एकदम गुजरात के सदर्न पार्ट से शुरू होके एकदम केरला तक एंड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी के 3 पार्ट्स हो गए हैं। ये इधर नॉर्दर्न पार्ट में इसको कोंकण प्लेन कहते हैं, बीच वाले पोर्शन को कन्नड़ कहते हैं, और Malabar. Malabar. पार्ट में इसको मालाबार कहते हैं, जो केरला में पड़ता है, ठीक है। और रिवर कौन कौन से है? यहाँ नर्मदा और तापी। Narmada, Tapi, Periyar. हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब तुम पिछले बार बहुत Mari. अच्छी हो, है ना? Yes. हाँ, Yes, sir. पढ़ने वाले बच्चे हैं क्लास में। तो इधर से ना वेस्ट फ्लोइंग रिवर में नर्मदा और रिवर तापी विच फ्लो इनटू अरेबियन सी, एंड इन केरला देयर इज अ रिवर, बिग रिवर पेरियार विच फ्लोज इनटू अरेबियन। हो गया। अब एक और पॉइंट क्या लिखना है रिवर के बारे में कि दीज रिवर फॉर्म एस्चुअरी एट देयर माउथ, है ना। अपने माउथ पे, जहाँ ये सी में मिलते हैं तो वो उसका माउथ कहलाता है। माउथ पे ये इरोजनल फीचर बनाते हैं, मतलब डीप चैनल बना देते हैं, क्योंकि यहाँ स्लोप ज्यादा है। तो इस
इसलिए इसको एस्चुअरी कहा जाता है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म एस्चुअरी एट देयर माउथ। और फिर इधर देखें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में देखें तो ईस्टर्न कोस्टल ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर narrower and eastern coastal plain which lie on the east of Eastern Ghat mountain and are parallel to the Bay of Bengal are broader। ये broad है ना, देखने में ही पता चलता है। और इसके दो पार्ट्स हैं, Yes, ma'am. यहाँ से लेके यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक, है ना, मतलब आंध्रा के नॉर्दर्न Northern Sarkar. हाँ लेकर के आंध्र Northern प्रदेश, सरकार। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तक, इसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार। और आंध्रा से लेके सदर्न आंध्रा से पूरे तमिलनाडु तक Coromandel Coast. कोरोमंडल। वेरी गुड, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। अब तुम लोग बताओ इन 4 important rivers of the eastern coastal plain। Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. कावेरी, महानदी, Kaveri, Krishna, Kaveri. वेरी गुड। तो ये 4 मेन रिवर्स हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे सैकड़ों रिवर्स हैं, लेकिन जो मेजर रिवर्स हैं वो यही चारों हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, है ना। ये दो मैप में ये देख रहे हो ना, लैंड ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ, तो ये गोदावरी का डेल्टा है। फिर ये क्या है, कृष्णा का डेल्टा है, यहाँ पे ये डेल्टा बनाने वाले रिवर्स है। और फिर लास्ट में ये क्या है, कावेरी है। तो इस रिवर के बारे में लिखेंगे, Kaveri. form delta at their mouth. West flowing rivers form estuary at their mouth and east flowing river form delta at their mouth। ये याद रखना तुम लोग, है ना। तो ज्यादा Yes, ma'am. Yes, ma'am. कल भी ये पॉइंट बताए थे कि ज्यादा रेनफॉल किधर होता है, इधर वेस्ट की तरफ, है ना। अरेबियन, Western. हाँ, तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रिसीव मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक ये भी डिफरेंस है ना। तो ये सारे पॉइंट हो गए। और तुमको जो हमने नोट्स भेजा है वो यही है, देखो यही है ना, शेयर हो रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. 2 बार ये नोट्स भेज चुके हैं, मैम 3 बार। 3 बार, वेरी गुड। चलो इतना तो याद है ना। तो देख रहे हो ना, ये ऐसे ही लिखना, पढ़ने में भी आसान है ना। तो ये तुम लोग इसमें चारों पॉइंट, पहले पॉइंट में हमने क्या लिखा है, इसके लोकेशन के बारे में कि एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है वेस्टर्न घाट और कहाँ पे लोकेटेड है ईस्टर्न घाट, सॉरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो यहाँ देखो, गलती से मेरे मुंह से घाट निकल गया ना, वो तो माउंटेन है, ये माउंटेन नहीं है, ये क्या है, हम लोग प्लेन को कंपेयर कर रहे हैं, Plains. हाँ कोस्टल प्लेन को कंपेयर कर रहे हैं। एग्जाम में बच्चे भी यही गलती कर देते हैं कि तो जब कोस्टल प्लेन को कंपेयर करने के लिए लिखा रहता है तो माउंटेन वाले पॉइंट भी मिला देते हैं, वैसे नहीं करना। फिर एक नैरो है तो दूसरा क्या है, ब्रॉड है। ब्रॉडर। हाँ, और इसके फिर तीनों पार्ट्स के नाम लिख दोगे, इसके दोनों पार्ट्स के नाम लिख दोगे। देख रहे हो, कोंकण, कन्नड़, Yes, और इधर नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल। नॉर्थन सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। जो बच्चे ध्यान से क्लास अटेंड करते हैं ना, सब क्लास में ही याद हो जाएगा। और रिवर्स के नाम लिख दिए हैं यहाँ पे, नर्मदा, तापी, पेरियार, और इस तरह तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, Godavari, कावेरी। Krishna, Kaveri. कृष्णा, कावेरी। हाँ, अब ये देखो कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ के रिवर एस्चुअरी बनाते हैं और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ के रिवर डेल्टा बनाते हैं। दोनों में क्या फर्क है, एस्चुअरी डेल्टा। erosional feature of river, estuaries are erosional feature of river, deposition feature of river। erosion और deposition का डिफरेंस समझ में आता है ना, बोलो। Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, Yes, ma'am. वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है नर्मदा, पेरियार, तो इसमें इरोजन उसके माउथ पे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ स्लोप ज्यादा है। जहाँ रिवर सी में मिलती है, अरेबियन सी में, तो उसके माउथ पे बहुत स्लोप है, इसलिए वो एस्चुअरी बनाती है, वहाँ इरोजन ज्यादा हो जाता है।
और इस तरफ क्या है, लैंड एकदम फ्लैट है, तो यहाँ सॉइल का डिपोजिशन होता है ट्रायंगुलर शेप में, जिसको डेल्टा कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दीज टू टॉपिक्स। सबको खूब अच्छे से समझ में आया है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.